بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر بات کرنا چاہتا ہوں قرآن کے الہامی ہونے پر کہ یہ من جانا باللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا ثبوت ہے اس کا؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، نیٹ پر میں دیکھتا ہوں تو اس پر سوال آتا ہے کہ کیسے پتہ چلے یہ قرآن پاک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میری چند دوستوں سے بات ہوئی، میرے پاس تشریف لائے تھے، تو وہ کہتے ان کی بات کا لب لباب ایسا تھا کہ یہ مکس ہے، ٹھیک ہے کچھ قرآن ہوگا کچھ قرآن نہیں ہے، مکس ہو گیا، آپس میں شامل کر دیا گیا کچھ اس میں۔ خیر ایک بندے کا وہ اپنے دل کے جذبات تھے کہ اس کو جو چیز بہت ناگوار گزر رہی تھی وہ جانوروں کا ذبح کرنا تھا۔ قرآن پاک جیسے حلال چیزوں کو ذبح کرنے کی بات کرتا ہے، کھاؤ پیو اس کے گوشت کی یا قربانی کے موقع پر، لیکن اس کو وہ بہت تکلیف دہ لگتا تھا وہ چیز، وہ عمل جانوروں کا، جب ان کو ذبح کرنا تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، وہ میرے کہنے کا مطلب وہ ایسا سمجھتا تھا کہ یہ قرآن کا شاید حصہ نہیں ہے۔ تو اس کے الہامی ہونے کی، قرآن پاک کے الہامی ہونے کی جو میں جانتا ہوں میرے پاس ہے 3 دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا موقف ہے آپ کو قرآن سے ہی رکھتا ہوں۔ ایک نے یہ اعتراض بھی کیا کہ یہ 2 جب میں نے رکھی ان کے سامنے تو یہ تو ایسا ہی ہے، یا بائبل سے آپ اس کی تصدیق کی دلیل دیں تو آپ کو باہر سے دیں۔ میں نے پھر باہر سے بھی دلیل دی، وہ بھی اس تینوں میں سے ایک شامل ہے، لیکن وہ دینی تو قرآن سے ہی پڑے گی، قرآن سے ہی ہمیں کہنا پڑے گا۔ بائبل کی اگر کوئی دینی ہے تو وہ جو کرسچین جن کی وہ کتاب ہے وہ دلیل دیں، اس میں قرآن میں اس کے مثلا الہامی ہونے کی دلیل وہ دیں تورات میں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہمارا ایمان ہے تورات اور انجیل پر، جتنی سب کتابیں ہیں جتنی سب پر ہمارا ایمان ہے، مگر یہ جو اب ہمارے پاس سامنے ہے یہ انجیل، یہ وہ الہامی کتاب نہیں، اس میں تحریف ہو چکی ہے، یہ اب وہ اصل حالت میں نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی پچھلی کتابیں ہیں سب کا عالم یہ ہو چکا ہے، مگر یہ قرآن پاک جو ہے یہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ سورہ ہجر کی 9 نمبر آیت میں ہم نے ہی اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میں اس کے لیے پہلے تو سوچا تھا کہ میں چلیں وہی بات پہلے کر دیتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس میں مکس ہو گیا ہے، یہ شاید اس میں کچھ قرآن ہے کچھ نہیں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82، پہلے بھی میں کافی اس کا ذکر کر چکا ہوں، اب خصوصی طور پر اس بات کے لیے کہ اس کتاب میں تضاد نہیں ہے، میں یہ 3 دلائل آپ کے سامنے قرآن پاک سے ہی رکھ رہا ہوں، مگر میں ساتھ علمیہ بھی بیان کروں گا، میں علمیہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خود ہی ان دلائل کو کس طرح رد کر رہے ہیں اور رد کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہی دلائل ہیں یہ قرآن کے الہامی ہونے کے، کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے اور یہ کسی فرد کی، کسی مخلوق کی، کسی بندے کی گڑھی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہوا ہے، یہ اسی طرح ہی ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے، مجھے ان کی دلیل کا نہیں پتا کہ مسلمان جی ایسا سمجھتے ہیں قیامت تک اس میں رہنا ہے، تو یہ ایسی ویسی بات کرتے ہیں۔ خیر میں یہ سب سے پہلی دلیل جو اس کی پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا علمیہ بھی بیان کروں گا جو ہم اس کو رد کرتے ہیں، کس طرح رد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی دلیل اللہ کے جانب ہونے کی یہ، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہ 82 نمبر ہے سورۃ النساء کی۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ یہ ہے جی اس کی پہلی دلیل۔
कि इस किताब में इख्तलाफ नहीं है, इस किताब के अंदर ऐसा नहीं है कि एक जगह अल्लाह कुछ कुछ फरमाए तो दूसरी जगह कुछ और फरमा दे, ऐसा नहीं है। कुरान में अगर गौर करें, ये इसकी पहली दलील है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। आप नंबर शुमार के हिसाब से जिस तरह चाहें आप कर लें। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। अगर हमें कोई इख्तलाफ नजर आता है, महसूस करते हैं, तो ये हमारी कजरवी का, कम फहमी का, कम अकली का नतीजा होगा, उसका सबूत होगा। एक तो ये बात होगी। इसका दूसरा सबूत ये है कि अगर हमें ऐसा नजर आता है तो वो तराजम की वजह से होगा। तर्जमे हमने ऐसे किए हुए हैं कुरान पाक के कि जिसकी वजह से वो हमें उसमें तजाद हमें नजर आता है, बिल्कुल वाज़ेह तजाद है। मेरी इस बात का कोई जवाब देना चाहे, मैं चाहूँगा कि वो जवाब दे। ये कोई मुकाबला नहीं है, ये एक तरह से तबादला ख्याल है। मैं अर्ज करता हूँ, आप मेरी बात का कोई दलील से जवाब देना चाहे तो बिल्कुल दे, मैं चाहूँगा कि वो जवाब दे। अब ये दलील तो मैं पेश कर रहा हूँ, ये मैं उसको बिल्कुल 100% दुरुस्त समझते हुए पेश कर रहा हूँ कि ये कुरान पाक के अलहामी होने की दलील है कि इसमें इख्तलाफ नहीं, किसी मकाम पर कुछ हो, किसी मकाम पर कुछ हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं है, महाल है कुरान के लिए। ये साबित करती है चीज़ कि ये किसी फर्द का गढ़ा हुआ नहीं है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कफारत राज करते थे ये अपनी तरफ से गढ़ लेता है, तो उसका जवाब ये ऐत नंबर 82 है। अलमिया साहब जो है, हम इसको रद्द किस तरह करते हैं, या रद्द ये दलील रद्द किस तरह होती है, हमारे ही हाथों से। देखिए, हम ही इस दलील को पेश कर रहे हैं, हमारे ही हाथों से ये रद्द हो रही है। वो कैसे हो रही है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। आप अगर देखें ये सूरत हामीम और सजदा की और कई मकाम आते, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पर एक चीज़ आपके सामने रख कर बयान करता हूँ। कुछ लोग इतराज़ कर देते हैं जी, और बड़े मकामात हैं जी, वो उसको आप लेते नहीं हैं, एक ही बात कर देते हैं, एक ही मकाम ले लेते हैं। वही बात कि हमारी एक आयत तो हमारे सामने कोई चीज़ ही नहीं है, उसको इधर उधर कर देना कोई तवील करके तो कोई मसला ही नहीं है। बहरहाल हामीम अल सईदा की आयत है, हामीम अल सईदा सूरत 41 है, उसकी 40 नंबर जो आयत है वो मैं आपके सामने थोड़ा सा उसका रखना चाहता हूँ। उसमें लफ्ज आता है ए मालू माशे, तो जिस तरह तुम्हारा दिल चाहे करो। उसमें कुछ मफहूम पहले ऐसा है कि पहले अल्लाह ताला एक तरह से ना सवाल फरमाता है, पूछता है कि क्या वो बंदा अच्छा है, तुम समझते, तुमने समझना है कि जो आग में डाला जाएगा वो अच्छा है, या तुम समझते हो कि ये 41 नंबर है हामीम अल सईदा की, मैंने खैर पहले शायद गलत कह दिया, और इसकी 40 नंबर आगे आयत है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बतलाओ तो जो आग में डाला जाए वो अच्छा है, ये वो उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, या वो जो अमन व मान के साथ क़यामत के दिन आए। सवाल है, सवाल किया अल्लाह ताला ने, वाज़ेह बात है, तुम जो चाहो करते चले जाओ, ये मालू माशे, तुम वो तुम्हारा सब किया कराया देख रहा है। देखिए वाज़ेह बात है कि सब कुछ बंदे ने करना है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है, तुम्हें आज़ादी दी गई है कि जिस तरह तुम्हारा दिल चाहे वो काम कर लो। जो जो आग में डाले जाने वाले हैं वो भी इस किताब में बता दिए हैं कि ये काम करोगे तो तुम आग में डाले जाओगे, और वो काम भी बता दिए गए हैं जो मनमान के साथ क़यामत के दिन आओगे, वो अमाल करोगे तो तुम क़यामत के दिन अमन अमान के साथ आ जाओगे। ये बात करने के बाद फिर आगे ये बात की है, तुम जो चाहो करते चलो, जो तुम्हारे जी में आता है तुम करो, ये मालू माशे, तो बात वाज़ेह होगी। और यही सच्ची बात है, हकीकत में सच्ची बात है कि हमारा हिसाब किताब होना है क़यामत वाले दिन। हमारे अच्छे बुरे अमाल, हमारे ज़रा ज़रा जो है वो सामने आ जाएगा। सूरत ज़िलज़ाल की आखिरी आयत देखे, जिसने भी कोई अच्छाई की होगी वो भी देख लेगा, जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो भी देख लेगा। ये है इसका, ये सूरत हामीम अल सईदा का 40 नंबर जो आयत है।
آگے سورت تکریم اگر آپ دیکھیں تو اس کی آخری آیت اس کو بڑا بیان کرتے ہیں. اس میں اس کا مفہوم ہے کہ تم جو جی چاہو، تمہاری چاہت کچھ بھی نہیں ہے، تم وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ چاہے. تم بغیر پروردگار عالم کے چاہ کچھ نہیں سکتے. یہ ہے 29 نمبر آیت. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے. میں ترجموں کی بات کر رہا ہوں، یہ ترجمہ اس کا یہاں. اب وہ دونوں مقام کو آپ دیکھ لیں. حامیم السجدہ جو اس کی 40 نمبر آیت ہے، اور اس کے ساتھ اس کا موازنہ کر لیں آپ سورت تکویر کی آخری آیت 29 نمبر آیت. آپ دیکھیے یہ تضاد ہے. یہ آپ کو بظاہر تضاد نظر آئے گا، یہ تضاد ہے. اس تضاد نظر کیوں آئے گا؟ اس میں یہ جو ترجمہ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ ہم غلط کرتے ہیں، یہ ہم غلط کرتے ہیں. اس لیے یہ تضاد نظر آتا ہے. یہ پوری قرآنی تعلیم کے منافی ہے، اور یہ روز محشر کے بھی منافی ہے کہ جہاں رہ جا اگر جو بھی میں کام کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے، تو پھر میرے سے حساب کتاب کیوں لیا جائے گا؟ میں یہ ساتھ ساتھ اس لیے اس المیہ کی بھی بات کرتا جا رہا ہوں کہ یہ ہماری یہ صورت، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف ہوتا تو یقیناً اس میں بہت اختلاف پاتے. اختلاف نہیں ہے. یہ جو اختلاف ہے یہ ہمارے کرتوت ہے، ہم نے ترجمہ اس کا غلط کیا ہوا ہے. غلط ترجمہ کرنے کی وجہ سے یہ اختلاف ہمارے سامنے آتا ہے، حالانکہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے. آگے میں اس کی دوسری دلیل جو ہے وہ بڑی شاندار ہے، اس کے ساتھ بھی المیہ کی بات ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسری دلیل قرآن کی کہ یہ الہامی کتاب ہے، من جانب اللہ ہے. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. تم سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ، کوئی ایک صورت بنا لو، کوئی ایک آیت بنا لو. اس میں یہ چیلنج کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج آج تک ہے اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت بھی، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے. اوکے، سیدھی سی بات. یہ دوسری دلیل میں دے رہا ہوں اس کے الہامی ہونے کی اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی. یہ قرآن اللہ کی طرف سے کسی بندے کا، کسی مخلوق کا نہیں گڑا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی طرف سے نہیں گڑا ہوا. یہ ہے اس کی دوسری دلیل. سورۃ بقرہ آیت نمبر 23. یہ دلیل اب میں دیکھی میں کیا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اب ہم خود ہی اس کی نفی کر رہے ہیں. وہ کس طرح نفی کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم کہتے ہو اس بات میں سچے ہو کہ یہ کسی انسان نے گڑی ہے، تو تم بھی انسان ہو نا، بلا لو، کٹھے ہو جو، سارے کٹھے ہو جو، کوئی شرط نہیں ہے کوئی ایک آدمی، سب مل کر آ جاؤ، لو ایک جیسی بھی. پس آگے بھی اس کے ذکر ہے، اور پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. آگے اس کا ذکر کر دیا کہ ایک تو تم نہ کیا نہیں، اور ساتھ کہہ دیا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہے؟ اس کو سچا مانو. سچا ماننے کا مطلب کہ اس کی پیروی کرو، اس پر مان لاؤ اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو. اور ایسی آگ سے بچو، آگے اس کا ذکر کر دیا جس کا اندر انسان اور پتھر ہیں. پتھر بھی ہم یہ جو بات لیتے ہیں یہ بھی کچھ تھوڑی سی اور طرح سے ہے. دل جن کے پتھر ہو گئے ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. بس اتنی سی بات کہ نہیں لا سکتے، اس کی مثل تم نہیں لا سکتے. لفظ اس میں مثل ہی بالکل اللہ آیا ہے کہ اس کی مثل تم نہیں لا سکتے. یہ ہے دوسری دلیل قرآن کے الہامی ہونے کی، قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی. آپ دیکھیے
अलमिया देखिए, सानिया देखिए, हमने क्या किया। अल्लाह ताला फरमा रहा है बस अगर तुमने ना किया, और तुम हरगज नहीं कर सकते, तुम हरगज नहीं कर सकते। ये कुरान करीम की सदाकत की एक और वाज़ेह दलील है कि अरब अजम के तमाम काफिरों को चैलेंज दिया गया, लेकिन वो आज तक इसका जवाब देने से कासर हैं और यकीनन क़यामत तक कासर रहेंगे। ये तशरीह है, मैंने अर्ज किया मैं, ये वो कुरान पाक है जो सऊदी अरब से आता है। सऊदी अरब मालकी हैं, मुकल्लद हैं, मालकी हैं, और इधर हमारे जो हैं वो गैर मुकल्लद अपने आप को कहलाते हैं, मगर इनके अकायद उनके साथ बहुत आपस में मिलते जुलते हैं। बात क्यों कर रहा हूँ, अब इन्हीं गैर मुकल्लद, जो इधर हमारे गैर मुकल्लद हैं और उधर वो मालकी जो हैं मुकल्लद हैं, इनका अकीदा क्या है। ये सिर्फ इन्हीं का ही अकीदा नहीं है, बाकियों का भी है। बरेलवी भी यही कहते हैं, देवबंदी भी यही कहते हैं, मगर ये जरा खुल के बात करते हैं। तो और फिर बल्कि इन्होंने तो वो पहचान ही अपनी हदीस बना ली ना, अहले हदीस, फखरिया अंदाज से बयान करते हैं कि हम अहले हदीस हैं। अलमिया क्या हुआ, यहाँ कुरान कहता है तुम हरगज नहीं ला सकते इसकी मिसल। हमने क्या किया, हमने सही बुखारी को इसकी मिसल ले आए, लाए हैं या नहीं लाए हैं, मुझे बता दीजिए। उसकी क्या तवील पेश करते हैं, मुझे नहीं पता क्या तवील पेश करते हैं। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि आप सही बुखारी को मिसल कुरान कहते हैं। वैसे तो हम सही ऐन कहते हैं, उसमें मुस्लिम भी आ जाती है, बाकी भी जो फरमान है उनके बारे में, सब जो नबी के फरमान है उनके बारे में कहते हैं, ये भी हुज्जत है। जिस तरह कुरान पाक हुज्जत है, इस तरह ये आपके फरमान भी हुज्जत है। तो ये मैं अलमिया की बयान बात करता हूँ। हम अपनी कुरान की दी हुई दलील को रद्द करते हैं। किस तरह रद्द करते हैं वो मैंने बता दिया, क्योंकि कुरान कहता है तुम इसकी मिसल नहीं ला सकते, और हम उसकी मिसल ले आए हैं पूरी किताब की शक्ल में, पूरी बुखारी शरीफ की शक्ल में। नहीं है तो आप बता दें। ये हमारे गैर मुकल्लद भाई, अहले हदीस भाई, और उसको अपने इतना फख्र है उस पर कि उस अपने पहचान वो बना ली। अंदाजा लगा ली, मुझे तो समझ नहीं आती इस बात की। हमने अपनी पहचान वो बना ली है कि हम अहले हदीस हैं। उस तरह अहले सुन्नत भी कहलाते हैं। ये मैं इस सिर्फ ये पर्टिकुलर इस हवाले से बात करता हूँ। कुरान दलील के तौर पर उस बात को बयान करता है, काफिरों को चैलेंज करता है जो इनकार करते हैं। ये कहेंगे जी हम तो इनकार तो नहीं करते, मगर हम ले आए हैं। शायद अल्लाह ने, इन लोगों ने, ये अहले हदीसों ने अल्लाह का चैलेंज कबूल कर लिया है और ये ले आए किताब उसकी। इसमें और भी बहुत सारे सवालात ज़हन में आते हैं, उलझ ना जाना, मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि वो क्यों नहीं ला सके जो काफिरों को चैलेंज किया गया था। इसमें कौन सी ऐसी बात है कि वो नहीं ला सकते थे, क्योंकि कुरान अरबी ज़बान में है। कुरान खुद बार बार ये कहता है हमने तुम्हारी ज़बान, जो तुम्हारी अरबी है, उस ज़बान में इसको नाजिल किया ताकि तुम बात को समझ जाओ अच्छी तरीके से। अच्छा, एक तो इस एंगल से देखें। दूसरा, दूसरी तरफ से देखें आप, जो उनकी ज़बान है, उन अरबियों की, वो कोई बात कर दें तो वो कुरान की मिसल होगी या नहीं होगी, उस जैसी आयत होगी या नहीं होगी। मिसाल मत देता हूं आपको। अब गुड मॉर्निंग, दूसरा सुबह की सैर, जो भी है मॉर्निंग वॉक, उस पर एक आर्टिकल अरबी में लिख दें, शानदार शुस्ता अरबी जिनको आती है उसमें वो आप लिख दें, तो क्या वो छोटी सी सूरत नहीं बन जाएगी सुबह की सैर अरबी में। तो क्यों क्यों फिर क्या नहीं, वो क्यों नहीं कर सके, इतना काम भी नहीं कर सके। क्या समझते थे वो इस बात को। मेरे भाइयों, सोचने वाली बात नहीं। वो लोग इतने बड़े बड़े, वो उनका फार में भी पढ़े लिखे लोग थे, आलम थे, तुरात के, अंजील के बहुत बड़े बड़े आलम थे, तो वो इतनी बात भी नहीं कर सके। कुरान ने चैलेंज दे दिया क़यामत तक, और हम कहते हैं कि वो क़यामत तक के लिए है। कोई भी नहीं ना उस वक्त लाया, ना अब लाया, ना क़यामत तक के लिए ला सकता है। तो ये मॉर्निंग वॉक पर एक मजमून भी नहीं ला सके वो, कि इस जैसी बता दें लो जी ये तो ये है अरबी, ये ले आया मिस्र में। सोचें इस पर जरा। मैं कहता हूं कि ये है वो माशी निज़ाम इस्लाम का दिया हुआ, जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, पता ही नहीं है हमें। हम तो कहते हैं अल्लाह राज़ के बस अल्लाह खैर सल्ला, और कुछ बात ही नहीं करते। ये निज़ाम रबूबियत जो अल्लाह ताला का है, ये उसकी बात है कि तुम वैसा नहीं ला सकते, तुम वैसा नहीं ला सकते। तुम तमाम काफिर भी इकट्ठे हो जाओ
तुम वैसा नहीं ला सकते। ये है बहुत, ये जो कुरान की आयत कहती है तुम इस जैसी किताब, इस जैसी कोई सूरत, इस जैसी कोई आयत, आयत से मुराद हम ये जो आयत पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसी को आयत कहते हैं। आयत को निशानी, कोई चीज आप इसके मुकाबले में ले आए अगर तुम्हारे पास कोई है ना, देखें वो निजाम कैसा होगा तो उसका बदल कोई ला ही ना सका। उस वक्त इतने बड़े बड़े ये फुसहा जो थे, फकीर लोग, जो कफार में भी, जो तौरात और अंजील के भी, वो भी नहीं ला सके इस निजाम, माशी निजाम। तो है क्या वो, अब हमारे सामने है ही नहीं, हमें पता ही नहीं उसका, तो वो भी कोई चीज है, उस पर तो बात ही नहीं करते हम। बात करूंगा लंबी हो जाएगी। उसके तीन जुज हैं, मैं अर्ज कर देता हूं साथ ही थोड़े से। तीन बातें आपने सामने रख कर ये निजाम बनाना है। पहले, कोई प्रॉपर्टी नहीं, मलकियत को डिफाइन करना है। कोई चीज कितनी देर आपकी मलकियत रह सकती है, नहीं रह सकती, किस किस चीज ने मलकियत की डेफिनेशन, जरूरतों की डेफिनेशन ये करनी है। बुनियादी चीज क्या है, मलकियत की डेफिनेशन ये देनी। मलकियत, किसी की कोई मलकियत नहीं, मैं ये कहता हूं, ये उसका पहला एजेंडे में से पहला नुकता है। दूसरा, सब ने काम करना है, कोई पैरासाइट नहीं, जो बैठे हुए खा रहे हैं, जो फकीर हैं, ये सब कुछ कोई नहीं, सब ने रियासत के काम करने हैं। और तीसरा एजेंडे में तीसरा नुकता उसका ये है कि तमाम शहरियों की बुनियादी जरूरियात रियासत ने पूरी करनी है। ये है मेरे नजदीक माशी निज़ाम, इस्लाम का माशी निज़ाम। इसको किस तरह नाफज करना है, इसके आगे खदो खाल क्या है, वो बयान किए जा सकते हैं। देखो मेरे फर्द वाहद की तरफ से होंगे नहीं, बैठे तमाम उलमा कराम उस पर बैठे, उस पर बहस करे, एक निज़ाम वज़ा करे। बनता यही है कि कोई प्रॉपर्टी नहीं, सब ने काम करना है और सबकी जरूरियात पूरी होनी है। मुख्तसर मैं आपको अर्ज कर देता हूं, मैं कहता हूं कि कुरान का ये दावा था, इसके मतबादल कोई निजाम तुम ला सकते हो तो लाओ, और वो नहीं ला सके, आज तक नहीं ला सके। तो ये मेरी दलील भी हो गई, और मैंने जो अलमिया आगे वो भी बयान कर दिया कि हम तो इसकी मिसल ले आए हैं, हम तो मिसल पैदा कर दी है। मेरे भाइयों, ये मेरी दो दलीलें थी। मैंने एक साहबा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो आप कुरान के अंदर से ही बात कर रहे हैं, तो वो कुरान की आपको बाहर से, मुझे समझ नहीं आई कि बाहर की भी कोई दलील हो, तो कुरान के अंदर से ही हमने दलील देनी है। देखिए मैं यहाँ ये बात भी करना चाहूंगा, आप जब भी किसी नजरियात की बात करते हैं, किसी थ्योरी की बात कर, तो जो आपको कोई ना कोई एक मरकजी नुक्ता मानकर आगे बढ़ना होगा। आपने कोई डायग्राम बनानी है तो आपको कोई ना कोई मरकजी नुक्ता मानकर उस नुक्ते से आगे चलना होगा, फिर ही वो डायग्राम बन सकती है। तो मेरे नजदीक वो बुनियादी नुक्ता कुरान पाक है। अगर आपके नजदीक कोई और है जिसको आप मरकज मानकर, फिर देखिए उसकी जो जिसको आप नुक्ता मानेंगे, जिसको आप कहते हैं, फिर आपको उसकी हर बात सच्ची मानना होगी। उसको मानते हुए फिर आप आगे बढ़े, फिर आप जो भी लाहे अमल तैयार करें आप करें। मेरे नजदीक ये है। बस जहाँ दूसरा आपका कोई इख्तलाफ हो जाता है, अल्लामी किताबें आई ही इसलिए है कि लोगों के खिलाफ खत्म कर। जो भी आपका इख्तलाफ, तो क्या करते हैं, कोई तीसरा सालिस आप बुलाते हैं, ये वही बेहतर होता है। तीसरे बंदे को बनाएं, वो दोनों की बातें सुने, फिर जो फैसला करे, और वो दोनों फरीक उस पर मुतफिक होते हैं उस सालिस पर, कहा जो ये फैसला करेगा हम इसकी बात को मानेंगे। तो मेरे नजदीक सालिस को क्या है, कुरान पाक है। ये है, अपने इख्तलाफ को इसके हजूर पेश करे, जो ये फैसला करे वो उसका हल है। और ये आया ही इख्तलाफात को खत्म करने के लिए। मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, तमाम अल्लाहमी किताबें इख्तलाफात को खत्म करने के लिए ही आई। अब देखिए, जो बाहर की उसको समझ लें आप, या उसको आप अंदर की ही समझ लें, दलील कुरान के अलाहमी होने की, ये कुरान के अलाहमी होने की ये तीसरी दलील जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो है, पहली कर चुका हूं कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, तुम इसकी मिसल नहीं ला सकते। और तीसरी दलील खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी, गैर नबवी जिंदगी, 40 साल
तक की गुजरी हुई जिंदगी आपकी, ये भी बहुत बड़ी दलील है। आप यूं कह दीजिए, ये 16 नंबर सूरह यूनुस की 16 नंबर आयत है। आप यूं कह दीजिए कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो मैं तुमको वो पढ़कर सुनाता और ना अल्लाह ताला तुमको इसकी इतला देता, क्योंकि मैं इससे पहले तो एक बड़े हिस्सा उम्र तक तुम में रह चुका हूं, फिर क्या तुम अकल नहीं करते। पहली बात आलम खलक की है और कानून मशीयत के उसको तय हो गया था कि ये इसने आना है, रसूल ने आना है, बयान करना है, ये है। अब आप यूं अगर अल्लाह को मंजूर होता, अब या अल्लाह को मंजूर ना होता तो ऐसा ना होता कभी। ये अल्लाह को मंजूर है, इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो मंजूर, ये अभी मंजूरी नहीं मिल गई, ये उस वक्त का मंजूर है, किस वक्त का, जब आलम खलक हुआ, जब कानून मशीयत बने। तो अगर सिर्फ जो बात बताना चाहता हूं, उजागर करना चाहता हूं वो, क्योंकि इससे पहले तो एक बड़ा हिस्सा उम्र तक तुम में रह चुका हूं, तो मैं तो तुमने इतनी जिंदगी गुजारी 40 साल, कभी तुमने मुझे देखा है कि मैंने कोई एक झूठ भी बोला हो, फिर क्या तुम अकल नहीं रखते। देखे कितनी बड़ी अकली बात दलील दी, अकली दलील दी कि आप खुद अंदाजा लगा लें। आप देखें जरूर, मुझे तो ये बात सोच के बड़ा एक तरह से वजद आता है। एक शख्स 40 साल तुम में रहा, अब तुम उसकी बात की नफी कर रहे हो और इस हद शिद्दत से नफी कर रहे हो, तुम उसके जानी दुश्मन बन गए हो। और वो शख्स कहता है कि मैं 40 साल तुम में रहा और तुम कोई बता दो कि मैंने तुमसे गलत बात की हो। कितना बड़ा दावा है, कितना बड़ा दावा है। कोई कह सकता है, कोई वो तो काफर थे, वो तो कह सकते हैं हाँ जी फलां मौके पर फलां बात ऐसी थी कि तुमने हमारे साथ ये झूठ बोला, ये कहा। यारो इतनी बात भी वो नहीं कर सके, वो आपके जानी दुश्मन, आपको हर तरह से आपका इनकार करने वाले इतनी बात भी नहीं कर सके कि यारो ये 40 साल हम में रहा, ये कहता है मैंने एक बोलो को मैंने कोई झूठ बोला हो, तो नहीं बोला। तो फिर अब जो मैं बात कर रहा हूं, मेरी ये बात भी तुम मानो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और ये किताब कुरान की अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं गढ़ा हुआ। तो मेरे भाइयों, ये इसकी तीसरी दलील, नबी की गैर नबवी जिंदगी, आपकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और कुरान पाक की सच्चाई की दलील बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर नबवी जिंदगी अंदाजा लगा लें, आप सोच लें इस पर खुदा इतनी अजमत वाले रसूल के बारे में आपकी ये अजमत का एक और मुंह बोलता सबूत है कि आपकी गैर नबवी जिंदगी, आपकी सच्चाई की और कुरान पाक की सच्चाई की, कि ये इल्हामी किताब है, नबी जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है, उसकी ये दलील बन गई। तो मेरे भाइयों, बस ये मैं 3 चीजें ही आपके सामने रखना चाहता था। पहले 3 चीजें इल्हामी किताब होने के कुरान की, कि ये इल्हामी किताब है, वही 3 थी कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है किताब में, और ये इसकी मिसल तुम नहीं ला सकते, और तीसरी खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। और साथ ही मैंने अलमिया भी, सानिया भी अपना बयान कर दिया, अपना दर्द भी बयान कर दिया, मातम भी कर दिया कि हम खुद ही किस तरह, खासकर जो पहली 2 दलीलें मैंने दी, उसको किस तरह हम रद्द कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आप मुझे बता दें, क्या हम नहीं कर रहे, क्या हम बुखारी को मिसले कुरान नहीं कहते, आप बता दें। तजाद है तो कुरान में बहुत सारे तजादात, इस तराजम की वजह से तजादात आपको नजर आए, तराजम की वजह से मजमूई तौर पर बिल्कुल कुरान में कोई नहीं तजाद नहीं पाया जाता। तो मेरे भाइयों, बस मैं यही बात आपसे अर्ज करना चाहता था। आपका शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी। आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। मेरी बात में ज्यादा कुव्वत पैदा हुई, ज्यादा कुव्वत के साथ फैले, तुम मेरे हमदर्द बन जो इस मामले में, इस बात को आगे फैलाने में। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।